Hello students, in the last video we have learned about the revolt of 1848, how hunger, hardship led to the revolt in France against its liberal leader Louis Philippe, and how National Assembly tried to calm down the situation by giving universal suffrage to men. In this video, we'll see a different perspective altogether. We'll be moving out of France and we'll be seeing what happened in all Europe during the time period of 1848. In the last video, I also mentioned about some kind of a struggle going on in Silesia, area in France, rural area, where the weavers revolted against the contractors. There is a place in France called Silesia, where the weavers, they revolted against their contractors. The contractors give order for the weavers to prepare the clothes, prepare textiles, but on contrary, they did not pay them. They did not pay the weavers properly, or they paid very less amount. When the weavers went on to demand a proper wages, they threatened the weavers, throwing them out. This led to a more violent attack by the weavers on the contractors. The weavers attacked the mansions. Mansions means house. Mansions of the contractors, making them flee from their home, looting whatever they get. These things were termed as uprising in Silesia, or the rural area, which was in a type of a turmoil going on at that point of time. Today we are going to see what happened in Europe in 1848. I have already told you, Duke Metternich once said, if France sneezes, whole Europe will catch cold. That means if there is something going on in France, that is going to definitely inspire the whole population of Europe. And this is very much relevant when what I teach today will make you understand this point. In 1848, we know there was also a revolt in Silesia in the weavers, during the weaver section, or the rural area. The countryside was totally in turmoil. The same situation was there with the city people. The liberal middle class people were not silent, they also revolted. So my first topic for today is revolt of liberals 1848 and afterwards. What I have written, please pay attention. The event in France inspired many untouched part of Europe, which now demanded constitutionalism with national unification. And which were the areas? Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian regions, etc. मैं इस पर विस्तार समझाता हूँ इजी वे में। पहले भी ड्यूक मेटरनिक ने बात कहा था कि जब भी फ्रांस स्नीज करेगा तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा, मतलब अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि फ्रांस में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो पूरे यूरोप में चेंज होने की संभावना बहुत हो जाती है, बिकॉज पूरा यूरोप फ्रांस की तरफ देख रहा था। हमको ये भी पता है 1848 में देयर वाज अ रिवॉल्ट, 1848 में चीज़ें चेंज हुई थी, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोग को पूरे यूरोप में देखने को मिलना स्टार्ट हो गया। यूरोप में वो एरिया जहाँ पे कभी भी वहाँ के लोगों ने अपने राजा को क्वेश्चन नहीं किया था, जहाँ पे कभी भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट सामने नहीं आया था, वो सब एरिया भी जो पहले अनटच्ड था, अब वहाँ पे भी लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। किसी का डिमांड कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपनाया जाए एक नेशनलिज्म के साथ, एक नेशनल यूनिफिकेशन के साथ, एक नेशनैलिटी कंट्री का कंसेप्ट, एक संवैधानिक राजा का कंसेप्ट, इसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया उन जगहों पे जहाँ से इससे पहले कभी भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट को सामने नहीं लाया गया था। वो कौन कौन सा एरिया था? जर्मनी, इटली, पोलैंड, एस्ट्रो हंगेरियन एरिया। ये सब एरिया कभी भी इससे पहले नेशनलिज्म का कंसेप्ट से उनका बहुत ज़्यादा अनटच था, बट आफ्टर 1848 इस एरिया में भी नेशनलिज्म का डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ माई टुडेज लेक्चर, द जर्मन यूनिफिकेशन एंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848। ध्यान रहे, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई एम नॉट कंफर्मिंग, बट येस देयर आर मैक्सिमम चांसेस यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम आइदर जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन, एंड वन मोर क्वेश्चन दैट आई विल बी टीचिंग यू एट द वेरी लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट ये जो पॉइंट मैं उठाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। हम बात करते हैं अभी जर्मन के यूनिफाई करने का।
जर्मन यूनिफाई, मतलब जर्मनी पहले यूनिफाइड नहीं था। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ, समझिए बात को। नेपोलियन बोनापार्ट ड्यूरिंग हिज रूल सेग्रीगेटेड जर्मनी इनटू 39 स्मॉल स्टेट्स। नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने शासनकाल में जर्मनी को 39 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। दे वर नॉट यूनिफाइड। The concept of nationalism was felt among the liberal middle class, the educated liberal middle class that lived in all these 39 regions. इन्होंने फील किया कि there is a need to form an association, एक नेशनल असेंबली का बनना बहुत जरूरी है जो पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर सके, और पूरे यूनिफाइड जर्मनी का एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। इसलिए 31 representatives of the segregated parts of Germany assembled at a place called Frankfurt. That is one of the prominent cities in Germany. Now it's called Frankfurt am Main. Frankfurt में लोग इकट्ठा होते हैं and they march in a very festive way. ढोल बाजे गाजे के साथ they march and they assemble at a church called Saint Paul's Church in Frankfurt. At Saint Paul's Church, they formulate, they draft a constitution for a unified Germany and referring the crown of a constitutional monarch to Frederick William IV. अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में कि जितने भी ये लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास से जो 31 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो डिफरेंट स्टेट से आए थे, ये सब सेंट पॉल चर्च पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे एक संविधान को ड्राफ्ट करते हैं जो एक यूनिफाइड जर्मनी के लिए होगा। और इस संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक राजा का होना आवश्यकता था। तो इस संवैधानिक राजा का जो पोस्ट है वो प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम IV, प्रूसिया का राजा फ्रेडरिक विलियम IV को देते हैं। फ्रेडरिक विलियम IV ऑलरेडी एक राजा है, वो प्रूसिया का ऑलरेडी राजा है। वो जानबूझ के एक संवैधानिक राजा क्यों बनेगा? मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक राजा एक संवैधानिक राजा दोनों में बहुत अंतर है। राजा जो है वो अपने मन की कर सकता है, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, पर एक संवैधानिक राजा जो है वो संविधान के अंतर्गत रह करके काम करेगा, वो फ्री नहीं है। इसलिए जो फ्रेडरिक विलियम IV है वो पहले से राजा है, वो आज़ाद है, तो वो क्यों एक संवैधानिक राजा बन करके अपने पावर को सीमित करेगा? इसलिए फ्रेडरिक विलियम IV ने मना कर दिया राजा बनने से। उल्टा उसने बाकी मोनार्क के साथ मिल करके इस सो कॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अगेंस्ट खड़ा हो गया, उसको अपोज करने लगा। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कभी भी एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री था उसका सपोर्ट था ही नहीं, दे वो ऑलरेडी अपोजिंग। और जैसे ही फ्रेडरिक विलियम IV ने अपोज कर दिया तो मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी का अपोजिशन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे और बढ़ गया और दबाव बढ़ गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग थे, वो मिडिल क्लास जो कि लेबर क्लास या फिर पीजेंट्स का, स्मॉल बिजनेसमैन का, उनका डिमांड को पहले ही रेजिस्ट कर रहे थे। दैट मीन्स दे वर नॉट अलाउइंग द वर्किंग सेक्शन टू कम विद द मिडिल क्लास। ठीक है, तो वर्किंग सेक्शन भी नहीं था, अरिस्टोक्रेसी ऑलरेडी अगेंस्ट है, मिलिट्री ऑलरेडी अगेंस्ट है, फ्रेडरिक विलियम भी IV अगेंस्ट हो गया, तो बच्चे कौन? बस मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास को जो प्रूशियन आर्मी ने पूरा का पूरा दबा दिया एंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड। ऐसे में अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूं तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट था जो जहां पे 31 रिप्रेजेंटेटिव, लिबरल एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए। वो गाजे बाजे के साथ मार्च करते हुए सेंट पॉल चर्च जाते हैं जहाँ वो एक यूनिफाइड जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की आवश्यकता होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को फ्रेडरिक विलियम IV को बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेडरिक विलियम IV जो ऑलरेडी प्रूसिया का राजा था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने से मना कर दिया, और जो एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री था जो ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को अपोज कर रहा था, उनका अपोजिशन का दबाव और बढ़ गया। वर्किंग क्लास को उन लोगों ने ऑलरेडी हटा दिया था, तो जो मिडिल क्लास बचा हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उसको आर्मी ने खदेड़ दिया एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरा का पूरा फेल कर गया। बट द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डजंट मेक एन एंड टू द जर्मन यूनिफिकेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो फेलियर है इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि जर्मन यूनिफिकेशन पूरा का पूरा फेल कर गया। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेल होने के बावजूद जर्मनी वॉज यूनिफाइड एंड देन German unification followed the Italy unification.